Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Exploring the Concepts and you are with Ma'am Shazia in her biology class. So हम करेंगे आज immunity chapter number 13 जिसमें हम पहले से ही मौजूद हैं और आज हम देखने वाले हैं second line of defense. So what is second line of defense? Let's check it out. So as you all know that we have completed the first line of defense, skin. Skin देख लिया हमने कि skin is doesn't allow any microorganisms to get in and same is the case with the mucous membrane. मतलब दोनों फेल हो चुकी हैं, ठीक है? तो यानी कि स्किन में कोई कट था, कुछ था, microorganisms get entered inside the body, or that may be possible that the microorganisms get come along in the body through the mucous membrane, right? Through the digestive system or through the respiratory system. So anyways, first line of defense has failed to perform its duty and now it's turned for the second line of defense. So let's see what is second line of defense. Let's check it out. So second line of defense is anything that basically is providing a shield against the microorganisms that are invading and that are successfully entering or penetrating the first line of defense, right? Skin को या mucous membrane को उन्होंने penetrate कर दिया है और अब वो second line of defense. Obviously we have to do something. हम उसे अंदर आने तो नहीं दे सकते, enjoy नहीं करने दे सकते अपनी body में. Although there is a lot of food for them and there is a lot of space and shelter for them, they are very happy to be in our body. But our body is not happy to be with them, right? So let's start with the second line of defense, why it gets into action and how it will take or what are the actions they are going to take. So second line of defense basically consisting of the group of cells, tissues, and organs. Like we have seen in the case of first line of defense, skin is there, other mucous membrane is there, certain stomach acids are there. So there are the liquids and the membranes which are involved in, which are involved in combating the microorganism. But now in this case cells and tissues are there for protecting our body. So do you know what is phagocytosis? Yeah, you all know the phagocytosis. And so basically, what is a phagocyte? Phagocyte is actually a white blood cell. Look at this diagram. Look at this diagram, and these are, by the way, the pathogens. मतलब बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. और अब ये फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना? आपको पता चल गया कि स्किन को क्रॉस कर लिया है या म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया. ओके, मान लिया हमने ये बात. अब ये एंटर हो गए. अब ये एंटर होते ही तो कोई कोई ना स्टैंडिंग आर्मी है. अभी समझो जैसे हम देखते हैं ना, ये पुलिस पुलिस ये खड़े में हैं जो रोड्स पे खड़ी हुई होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई होती है, या कोई और डॉल्फिन एक नहीं है, कोई वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं हर वक्त, छोटे मोटे स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए. तो सेम इज़ द केस विद दिस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये छोटे मोटे केसेस को कवर करने के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना कम है कि वो हमारे कि वो ये खुद कुछ समझते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे, ट्राई मारते हैं असल में. सो द फेगोसाइट इज बेसिकली अ वाइट ब्लड सेल. यू ऑल नो फेगो मींस ईटिंग. फेगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ सेल्स, राइट? किसी ये भी किया हुआ है आप लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हैं. Imagine the pathogens are thieves and criminals and the white blood cells are the police. ठीक है ना? इन्होंने भी वही एग्जाम्पल ली हुई है. आप समझ लो कि वो पुलिस हैं जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक्टिवेट होंगे. एक्चुअली ऑल्दो दे आर द वाइट ब्लड सेल्स, मगर ये नॉन स्पेसिफिक है. एक चीज़ याद कर लो यहीं पे ये बात कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, बोथ ऑफ देम आर नॉन स्पेसिफिक. बोथ ऑफ देम आर नॉन स्पेसिफिक. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इननेट. वो जिस तरह का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई फॉरेन पार्टिकल होगा, एयर होगी, डस्ट होगी, हेयर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट होगा, कुछ भी होगा, ये इसको डील करेंगे बिकॉज ये इननेट है. ये हमारी बॉडी में नॉन स्पेसिफिक है. ये पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं जानते, ठीक है ना? तो ये अब कोई भी आएगा और वो अगर आपकी बॉडी से मैच नहीं करेगा, ये इसको पकड़ के मारना शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑलवेज सर्कुलेटिंग लुकिंग फॉर पैथोजेंस टू एनगल्फ. तो इसको एनगल्फ कर लेंगे. तो फेगोसाइटोसिस को पता है ना, मैं बताने भी वाली हूँ आपको कि होती क्या है.
So it comprises of the following non-specific internal defenses. So second line of defense consisting of phagocytosis, phagocytic cells. So first of all, the phagocytic cells are important, most important thing. Macrophages and neutrophils are there to help us, and then natural killer cells are also there, and then complement system. There is a system of proteins which is basically helpful in controlling the number of microorganisms, and they are performing in second line of defense. Means once again, these are two are non-specific. Okay, they do not give you a specific immunity against any microorganism. And then inflammatory response, we will discuss it as well. And finally fever. All these things are non specific, innate, पहले से आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं इस तरह के रिएक्शंस, आपकी बॉडी शो करती है। हाँ, इनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ओके, है ये कौन सी? नॉन लर्नड और नॉन स्पेसिफिक and innate, right? That what is called as second line of defense. So इस तरह आपकी बॉडी, ये 5 तरीके हैं जिससे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी को कंट्रोल करेगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करेगी। फैगोसाइटोसिस करने वाले दो ही ग्रुप्स हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। फैगोसाइटोसिस करने वाले दो ग्रुप्स हैं मेजरली, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। आप देखोगे आगे चाहे स्पेसिफिक इम्यूनिटी आ जाएगी, मगर वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करके उनको डैमेज करके मैक्रोफेजेस के ये वाले करेगी, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर phagocytosis, for do to do phagocytosis in the cell, which is called as endocytosis, right? Can you recall that the term endocytosis? So basically they are responsible for performing this task to kill the microorganism and engulf it and then digest it, right? Okay, so this is one of the phagocyte, by the way, it is a phagocyte। और ये देखो इसकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। आप देख रहे हो कि इसने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाइंड अप किया हुआ है, अपने इर्द गिर्द उसको होल्ड कर लिया है। अब ये होल्ड करके इनको अंदर लेके जाएगा, अपने अंदर एंडोसाइटोसिस करा देगा। कैसे कराएगा मैं दिखाती हूँ आपको। एक कॉन्सेप्ट है, पहले हमने देखा, यही वही डायग्राम मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ये आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया में ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स ऑब्वियसली नो वन कैन एंटर, तो ऑब्वियसली रिसेप्टर्स पे आके ये बाइंड कर गया, पता चल गया कि ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, कोई बैक्टीरिया है। सो लेट्स, आपने नोटिस किया द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, द एनक्लोज द bacteria inside it. This is what is called as food vacuole in case of amoeba. और फिर उसके बाद क्या होता है कि इस फूड वैक्यूल के अंदर लाइजोसोम्स आके जंप लगा देते हैं और अपने सारे एंजाइम्स अंदर शेड ऑफ कर देते हैं, जिससे डाइजेशन शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन के बाद ये फूड सारा डाइजेस्ट हो गया, इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं और वेस्ट जो है ये बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस। आई एम होपिंग दैट यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ फेगोसाइटोसिस। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर मैक्रोफेजेस। तो ये होता है एक अदद मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज की इसी तरह एक्सटेंशन, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हैं, और ये इसने बैक्टीरिया वगैरह को होल्ड कर लिया है और अब अंदर ले जाएगा, एनगल्फ कर लेगा, एंडोसाइटोस कर लेगा, एंड देन इट विल किल इट। और देखते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग में ये क्या करता है। हाँ, before discussing the detailed working of the macrophage, I want to tell you something about the monocyte and macrophage. अक्सर बच्चों को थोड़ी सी confusion होती है, तो मैंने यहाँ डिफरेंस भी लगा दिया है। It's a gift from my side. So monocyte इमेच्योर मैक्रोफेज होता है। ठीक है, मोनोसाइट क्या होता है, ये देखो, ये मोनोसाइट है, जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये मैक्रोफेज बन जाता है। तो यानी कि दोनों आर वन एंड द सेम थिंग, बोथ ऑफ देम आर वाइट ब्लड सेल्स। याद रखना, बोथ ऑफ देम आर वाइट ब्लड सेल्स एंड मोनोसाइट्स आर कमिंग, you know, the macrophages are coming from monocytes. They are the mature form of monocytes. So monocytes and macrophages, there is a difference between the two. आप यहाँ से बस ये एक पॉइंट चेक कर लो, that monocytes is present in the blood stream while macrophages they will go to the tissues. ये सारी बॉडी के ऑर्गन्स के टिश्यूज में चले जाते हैं, वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि अंदर हर ऑर्गन के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। As far as the microorganisms are present in the blood, then there are, along with the monocyte, there are other cells are there for the protection of the for to kill the microorganisms. फिर ये अब सारे अकरेंस देखनी है हमने। अब ये तो हमें पता चल गया, आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि जनाब जो मैक्रोफेजेस हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो मोनोसाइट से बनते हैं। तो अब ये क्या है, लंग्स। मैक्रोफेजेस कहाँ मिलेंगे आपको? वो आपको लंग्स में मिलेंगे, वो आपको लिवर में मिलेंगे,
लिवर के अलावा वो आपको स्प्लीन में मिलेंगे। स्प्लीन जो आपको याद है कि एक इम्यून ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन भी है, ठीक है। ये मैंने फिगर इसलिए भी डाली ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए पोजीशन ऑफ द ऑर्गन्स का। ये लिवर पड़ा हुआ है दरमियान में स्टमक एंड इट इज़ क्लोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट स्प्लीन। स्प्लीन आपको याद है कि लिम्फोइड ऑर्गन था। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपने देखा, एक तो इसका मेजर थी लंग्स। लंग्स के अलावा ये लिवर में प्रेजेंट है, लिवर के अलावा ये स्प्लीन में प्रेजेंट है, ये जो हाईलाइटेड रीजन है। एंड देन किडनीज आर द मेजर साइट वेयर मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट, राइट। इसके अलावा भी एक और चीज जगह है, वो है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स याद आ रहे हैं, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम की बनाई थी। तो ये जितने भी आपको, ये देखो उसने सारा प्रोमिनेंट कर दिया है कि यार इस जगह में लिम्फ नोड्स हैं। तो ऑल दीज ग्रीन बीडी स्ट्रक्चर्स, दे आर द lymph nodes, and lymph nodes are filled with macrophages, right? Because endocytosis will be going on there, right? Because वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने फिल्टर कर लिए, अब वो कहाँ जाए, फिल्टर होने के बाद उसकी डेथ होनी चाहिए, तो कौन करवाएगा, मैक्रोफेजेस करवा सकते हैं, नॉट अदर देन the no cells other than macrophages. So this is how where they are located in, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब आता है आपके पास किडनीज एंड लंग्स प्रेजेंट हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय मूविंग थ्रू आउट द बॉडी, पेट्रोलिंग। अच्छा, ये वर्किंग ऑफ मैक्रोफेजेस की डायग्राम कोई परफेक्टली मिली नहीं जो कि तुम लोगों की किताब में प्रेजेंट है, तो किताब से मैंने बुरी से एक इमेज लिया है। सो मगर चलो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको एक मैंने जो इमेज मिला है उससे मिलाने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द मोनोसाइट्स, ठीक है, ये मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स मेच्योर हो गए, बैक्टीरिया वगैरह को देखा तो ये ब्लड स्ट्रीम में से निकल आए, मैक्रोफेज बन गए। मैक्रोफेज ये बैक्टीरिया वगैरह है, बैक्टीरिया को इसने क्या किया, इसने एनगल्फ कर लिया, ये दोनों मिल गए। एनगल्फ करने के बाद क्या किया, मैक्रोफेज अटैक बैक्टीरिया, उसने अटैक किया, उसको अंदर ले गया, अंदर ले गया, उसके पार्ट्स को अपने ऊपर डिस्प्ले कर दिया। यानी कि पहला पार्ट क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग। एनगल्फिंग के बाद क्या हुआ, इट डिस्प्लेज, ये लिखा हुआ है, मैक्रोफेज एनगल्फ्स बैक्टीरियम एंड डिस्प्लेज पार्ट्स ऑफ सरफेस। अब इसने अपने इर्द गिर्द बैक्टीरिया का हिस्से अपने साथ लगा लिए। इसने अपने साथ क्यों लगा लिए, इसने इसलिए लगा लिए ताकि बाकी बॉडी को इन्फॉर्म किया जा सके कि देखो ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गया है, तो डू समथिंग, लेट्स हैव अ प्लान, सो टू किल ऑल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स मेक अ प्लान। So macrophages not only phagocytose by bacteria, they also display its parts on their surface. इसी तरह हेल्पर टी सेल्स भी यही काम करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने जैसे अपने साथ लगा लिया ना, तो उसके साथ वो कुछ प्रोटीन्स इनमें निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, उसके पीसीस को अपने साथ चिपकाया, और उसके बाद कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, तो प्रोटीन्स रिलीज होना शुरू हो गए। अब जो सबसे पहली प्रोटीन इसमें से निकलती है ना, वो तो फर्दर मैक्रोफेजेस के लिए निकलती है, ठीक है। प्रोटीन आई उसको क्या करेगी, मजीद मोनोसाइट्स को मैच्योर किया जाता है और मैक्रोफेजेस बना बना के उस स्पेसिफिक ऑर्गन या उस स्पेसिफिक जगह पे भेजा जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट प्रोटीन इज मेंट टू एक्टिवेट द मोनोसाइट, और यू कैन से द प्रोलिफरेशन ऑफ मोनोसाइट और द प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। वो जी मेच्योर हो गए, सारे मोनोसाइट्स मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं तेजी से। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर रेज करवाने में हेल्प करता है, ताकि इससे एक तो बैक्टीरिया जो है वो इतनी अच्छी तरह से हैप्पी हैप्पी रहेगा नहीं, उसको मुश्किल लगेगा हाई टेम्परेचर पे। दूसरा, आपको पता चल जाएगा दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, फीवर। सो प्रोटीन्स दूसरी रिलीज करेगा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देंगी। फिर एक तीसरी प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 आई थिंक सो, जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और फिर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, फिर अब ये तीसरी प्रोटीन ये तब रिलीज करेगा जब मामला बैक्टीरिया मैक्रोफेजिस के हाथ से बाहर निकल जाए, ठीक है ना। वो तब रिलीज करेगा कि वो कहेगा यार अब ऐसा करो कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करो, कि वो इसके मुताबिक एंटीबॉडीज बनाए या इसके मुताबिक वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करके इसको किल करें, क्योंकि मेरे जो है इख्तियार से ये बात थोड़ी सी बाहर निकल गई है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस डायग्राम. This is once again a macrophage. Macrophage is engulfing a bacteria. Now bacteria is back being the part of the macrophage, and now it is going to displaying all of its parts, the parts of the bacteria around its surface. उससे क्या हुआ, देखो बी सेल भी एक्टिवेट हुए, टी सेल्स भी एक्टिवेट हुए, हेल्पर टी सेल्स आ गए, उनके सरफेस पे भी लग गए पार्ट्स आके। सो यूं सब्सिक्वेंट इम्यून स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी एक्टिवेट हो जाता है इसके थ्रू।
So macrophage interact with microbes, not only engulf, destroy, and they also display some parts of microbes on their surface, so that the other body cells may also be informed. Some other proteins also stimulate the specific immune response. मैंने बता दिया कि ये वाला जो बी सेल्स और टी सेल्स जब भी एक्टिवेट हो गए ना, तो आप समझ जाओ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शुरू हो गया. स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को हम डिस्कस करेंगे, अभी हम नॉन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. फिर वही सेम फिगर है. सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स हुई इसके अंदर, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं. तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि वो 3 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है. एक तो वो फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, यानी कि अपनी ही मजीद ग्रोथ करवाना, ठीक है, मोनोसाइट्स को मेच्योर करने में हेल्प करेगी. मैसेज है ना उनके लिए. फिर दूसरी प्रोटीन है जो कि हेल्प करेगी इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करने के लिए. इंटरल्यूकिन 1 क्यों आती है, मैंने बताया था आपको, बॉडी टेम्परेचर रेज करने के लिए. और तीसरी प्रोटीन जो आती है वो मैं बता चुकी हूँ मैं आपको, कि वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, पिछली फिगर में था, वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करना. जब वो एक्टिवेट हो गए तो वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ही जनरेट करते हैं, और इसीलिए वो स्पेसिफिक का पार्ट है. अभी हमारा फोकस नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है. ओके, so this is all about the macrophages. The macrophages are my favorites, and I'm hoping आपको भी पसंद आएंगे. All the best from my side. कोई confusion है, do write me, do write in the comments, give me a feedback to improve the channel, to improve my your understanding. In fact, questions पूछा करें ताकि आपकी understanding improve हो सके. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.